Good morning, students. I am Pushkaraj Bedekar, faculty of ICAI Pune branch for CA Foundation Mathematics. And today we are going to start the new topic of mathematics, which is sequence and series. This is very important topic from exam point of view. Almost 4 or 5 questions will be there in the examination, approximately. So very important from exam point of view, and initial part is comparatively easy, and then we will move further for the difficult part. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज. आपको जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक नोटबुक क्लास वर्क के लिए रखना है, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा क्वेश्चंस उसके लिए, और एक नोटबुक होमवर्क के लिए रखना है, जो मैं क्वेश्चंस आपको स्टडी मटेरियल में से सॉल्व करने के लिए बोलूंगा. तो वो अलग से सॉल्व करने के लिए नोटबुक अलग बनाना. और आपके पास अभी आपका नोटबुक, पेन और कैल्सी लेके रखो, और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं. टॉपिक का नाम आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो आप, सीक्वेंस एंड सीरीज. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर. तो यू कैन नोट डाउन जस्ट डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. Sequence is an arrangement of numbers sequence is an arrangement of numbers in definite order. In definite order. अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये समझते हैं. एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है. 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने. सेकेंड इज 1 3 9 27 एंड सो ऑन. थर्ड 1 4 9 16 एंड सो ऑन. These are 3 cases. Tell me whether I can call first example as a sequence. Is there any relation between given numbers? तो आप देख सकते हो, every next number is greater than 2 by the previous number. So we can say difference between any 2 consecutive terms is same. That is 3 minus 1, 5 minus 3, 7 minus 5. Every times it comes as 2. So we can call first example as a sequence because there is a definite relation between given numbers. Second example देख सकते हो आप. Second example also we can call it as a sequence because ratio between any 2 consecutive terms is constant. For example, 3 by 1, 9 by 3, 27 by 9. Every time that value comes to 3, 3 by 1, 3, 9 by 3, 3, 27 by 9, 3. So that ratio is same. So second example is also a sequence. If you check the third example, it is given as 1 4 9 16. क्या relation मिल रहा है given numbers के बीच में? 1 ये क्या है? 1 square है. 4 is 2 square, 9 is 3 square, 16 is 4 square. So every term is square. So it is the series of squares of first n natural numbers. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and so on. So if there is definite relation between given numbers, then that basically that given data is considered as sequence. सो ये हो गया सीक्वेंस क्या होता है. अब सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, और उसमें से आज हम पहली चीज कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो गिव हेडिंग टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, and in that first type is arithmetic progression. First type is arithmetic progression, generally denoted by AP. Generally denoted by AP. उसका एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना.
if difference between if difference between any two consecutive terms is constant, that is same, then sequence is arithmetic progression. Then sequence is arithmetic progression. क्या कंडीशन है देख लेना, difference between any two consecutive terms must be same. So can I say this first example is example of arithmetic progression? 1 3 5 7 difference 3 minus 1 5 minus 3 7 minus 5, every times that difference is 2 means difference is constant, so sequence is arithmetic progression, ये बोल सकते हैं. वैसे ही और एग्जाम्पल कंसिडर कर लो. सपोज आई गिव यू द कंडीशन 9 6 3 0 minus 3. Is it AP? Is this AP? This is an arithmetic progression. Reason, difference check कर लेना, any two consecutive terms, 6 minus 9 minus 3, 3 minus 6 minus 3, 0 minus 3 minus 3, and minus 3 minus 0, that also comes to minus 3. So every time difference is same, so sequence is an arithmetic progression. ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बट दैट डिफरेंस मस्ट बी सेम, दैट इज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. If I ask you in this example 1 3 5 7, what would be the next term? Then this answer is very easy. Next term would be 9. After that it will be 11, then 13, 15. But if I ask you to find out the 75th term directly, then it is not that easy. If I ask you find out 1000th term, then it's not that easy to find out orally. So for that we need formula, and in case of AP we have to deal with two formulae. So give heading formulae in AP, formulae in arithmetic progression. First formula, nth term of an AP. nth term of an AP. nth term मतलब क्या रहेगा कि कोई भी टर्म आपको अगर कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट 15th term, then value of n is 15, and formula for that is Tn. Generally nth term is denoted by Tn. Formula is a plus n minus 1 into d. Now the question is, Tn is nth term, that is but obvious, but what is a, what is n, and what is d? So for that, a means first term of the sequence, first term of the sequence. N number of terms, n is number of terms, and d is common difference, which can be calculated by any term minus previous term, any term minus previous term. So if I give you this sequence, this is arithmetic progression, that we know difference is constant. But what is a? A in this case is 1,
फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही करना है, ध्यान में रखना. सो वी हैव टू डू 3 minus 1 or 5 minus 3 or 7 minus 5, whatever it is. So common difference is 2. But if you consider this case, this example, this is an arithmetic progression already discussed. What is a? In this case a is 9. Common difference is what? Common difference is minus 3. Common difference is minus 3 because we have to consider any term minus previous term. So 6 minus 9, that gives you minus 3. तो ये चेक करना है आपको डिफरेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. एंड इफ इन दिस एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट 20th टर्म, 20, in that case value of n will be 20. So these are terms used in the formula. A is first term, D is common difference any term minus previous term, and n the number of terms given in the question. Okay, so in general this is the formula. And if I ask you for any arithmetic progression, find out the 10th term. If I ask you to find out the 10th term, then it would be T10. 10th term would be T10, which can be written as a plus, here you have to substitute 10, so 10 minus 1 into d, that gives you 9d. So a plus 9d, 10th term you have to write it as a plus 9d, right? And if I ask you 100th term, then it would be a plus 100 minus 1 into d, that is 99d, a plus 99d. तो एग्जाम में अब आपको क्विकली सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे लिखते नहीं बैठेंगे हम. अगर 10th टर्म आता है तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए. एपी के केस में a plus 90. If I ask you 25th term, then it is a plus 24d, that's it. Okay, so this is the first formula which is required in case of arithmetic progression. The second formula which is required is sum of n terms of an arithmetic progression. Sum of n terms of an arithmetic progression. So if I ask you for this sequence, find out sum of 20 terms. Sum of 20 terms. तो हम क्या 9 plus 6 plus 3 plus 0 करते बैठेंगे? इतना टाइम नहीं है हमारे पास. कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ऐसा भी बोल सकते हो आप. पहले जो टर्म्स कंसिडर करेंगे वो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जनरली डिनोटेड बाय Sn. Generally denoted by Sn, and formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sum is generally denoted by Sn, and formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Terminology is exactly same. A is first term, n means number of terms given in the question, and d is the common difference, right? Okay, and Sn is sum of n terms. Or there is one more formula for finding out sum. Sn is given by n by 2 into first term plus last term. N by 2 into first term plus last term. Now which formula we are going to use? Actually that is dependent on the question. क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे. If I give you first term, common difference and number of terms, then we have to use formula number 1. And if I give you first term and last term, then we have to use formula number 2. So both are formally related to finding out sum of n terms of an AP. तो ये दो फॉर्मूले हमें जरूरी है Sn के लिए, और nth term अगर फाइंड आउट करना है तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. सो बेसिकली देयर आर ओनली टू फॉर्मूले, but for the second one we can use
alternate formula means or either this one or this one depending on the question. So you can note down this in your notebook. पूरा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये अब हमें लगने वाला है. अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिक थ्योरी हमने देखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला, एंड देन सम ऑफ n टर्म्स. टर्मिनोलॉजी भी मोस्टली आपको क्लियर है, a n d क्या क्या होता है. सो क्विकली नोट डाउन दिस वन, फॉर्मूला इन AP, कंप्लीट डिटेल्स नोट डाउन कर लेना. अगर ऊपर का रह गया तो आप पॉज करके भी इसको नोट डाउन करके ले सकते हो. Okay, let us start with numericals. Note down questions in your notebook with me. Solution लिखने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, लेकिन questions मेरे साथ नोट डाउन करते जाना. First question. Find out 20th term of the sequence 1, 4, 7, 10 and so on. Also find out sum of first 51 terms. Sum of first 51 terms. Okay, note it down. अब देखते हैं solution. What is given sequence? 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले आपको देखना है सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्योंकि और भी टाइप के सीक्वेंसेस है, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स है, तो वो देखेंगे बाद में हम. लेकिन पहले जो कि हमने एपी स्टार्ट किया है, तो पहले हम देखेंगे सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. कैसे डिसाइड होगा? वी हैव टू चेक द डिफरेंस. 4 minus 1 3, 7 minus 4 3, 10 minus 7 3. So difference is constant, so sequence is an arithmetic progression. If it is arithmetic progression, then tell me what is value of a. A is 1, first term of the sequence. What is common difference? Common difference is 3. 4 minus 1 3. Okay, A is 1, D is 3. What is first sub question? We want to find out 20th term of the sequence. मैंने आपको 10th टर्म के लिए क्या बताया था? क्विकली a plus 9d बताया था. 20th टर्म मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना होगा, nth टर्म वाला. तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा? a plus 20 minus 1 into d. फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d, जिसमें से n का वैल्यू अगर 20 पुट करते हैं तो a plus 20 minus 1 that is a plus 19d. क्विकली हम इसको नोट डाउन कर लेंगे. a plus 19d, जिसमें से a मुझे पता है और d भी पता है, खाली सब्सटीट्यूट करना है. तो कैसे होगा सब्सटीट्यूशन? a है 1 plus 19 into 3, that gives you 1 plus 19 3s are 57, which finally comes to 58, and this is our first answer. 28th term is 58. क्लियर है यहां तक? आगे चलूं. Second question. What is second question? Also find out sum of first 51 terms. Sum of first 51 terms. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा राजा बेटा?
फर्स्ट और सेकंड, पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रीजन, हमें लास्ट टर्म थोड़ी पता है, 51st टर्म हमने कैलकुलेट नहीं किया है, अदरवाइज आपको 51st टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी नो द फर्स्ट टर्म बट वी डोंट नो द लास्ट टर्म, 51st टर्म पता नहीं है, तो ईदर यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट 51st टर्म फर्स्ट एंड देन यूज दिस फॉर्मूला, और यू कैन डायरेक्टली यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। सम ऑफ 51 टर्म्स, फॉर्मूला इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Substitute n 51 divided by 2, 2a, that is 2 into 1, plus 51 minus 1 into common difference is 3. तो क्या क्या हो जाएगा, 51 divided by 2, ब्रैकेट में 2 into 1 2, प्लस 51 माइनस 1, मैथ्स के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू 3, सो 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस, मैथ्स के रूल के हिसाब से बॉडमास रूल बेसिक क्लास में हमने पढ़ा है, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 2 करना पड़ेगा बाद में, सो इट कम्स टू 51 बाय 2 इंटू 152। तो सॉल्व कर देना कैलसी पे फटाफट, 152 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 76 मल्टीप्लाइड बाय 51, 3876 आता है क्या चेक करो, और यही हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फाइनल आंसर है। यहां पे पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर था 58 और सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर है 3876। यहां तक सॉल्यूशन आप नोट डाउन करके ले सकते हो, 2 मिनट ले लेना, सॉल्यूशन क्विकली नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। यहां से लेके पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना आंसर से। ओके, होपफुली हो चुका है आपका। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लेता हूं, ये बहुत ही पहला क्वेश्चन सीधा साधा हो गया, उल्टा क्वेश्चन देखते हैं। अब नोट डाउन करना, इफ लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस सिक्स, 8, 10, 12 and so on is 176. Find out number of terms in the sequence find out number of terms in the sequence। क्वेश्चन क्विकली नोट डाउन कर लो। ओके, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 6, 8, 10, 12 and so on. First check whether it is arithmetic progression or not. We have to check the difference, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2, 12 minus 10 2. Every time difference is same, so this is arithmetic progression. And check the statement, if last term of the sequence 6, 8, 10, 12 and so on is 176, so last term means we have to consider Tn as 176. What is A?
A is 6. What is common difference? Any term minus previous term. So 8 minus 6, that comes to 2, positive. Last term is 176. Find out number of terms in the sequence. So we have to find out value of n. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे या Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वेश्चन में क्या बोला है? nth टर्म दिया है, लास्ट टर्म इज गिवन. सो लास्ट टर्म अगर क्वेश्चन में दिया है, देन वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ Tn. अगर क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स बोला रहता था तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में nth टर्म बोला है तो Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इसको लिख लेता हूं मैं फॉर्मूला को. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं. दिस लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन एज 176 which is equal to a. a is 6 plus n minus 1. n find out करना है, so keep as it is. n minus 1 into common difference is 2. तो पहले क्या हो जाएगा? ये 6 यहां पे राइट हैंड साइड में प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा. सो 176 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. 176 माइनस 6, दैट गिव्स यू 170 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. राइट हैंड साइड में ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. So that comes to 170 divided by 2 is equal to n minus 1. 170 divided by 2 quickly आप कर सकते हो. That gives you 85 is equal to n minus 1. और ये minus 1 यहां पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n is equal to 85 plus 1. So value of n, number of terms, that comes to 86, and this is our final answer. क्लियर है 100%. अब पूरा सॉल्यूशन आप नोट डाउन करके ले सकते हो, यहां से नोट डाउन करना. क्विकली आपके नोटबुक में नोट डाउन करो. ये नोटबुक आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एट द टाइम ऑफ एग्जाम यही नोटबुक आपके काम में आने वाला है. बाद में जो होमवर्क के लिए बोलूंगा वो अलग से नोटबुक में सॉल्व करना. ओके, यहां तक हो गया. ये लो नीचे वाला, यहां से लेके यहां तक, ये फाइनल आंसर है. उल्टा क्वेश्चन था क्योंकि पहला जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें मैंने Tn पूछा था आपको, nth टर्म पूछा था, मतलब 20th टर्म पूछा था. इस क्वेश्चन में मैंने आपको nth टर्म दिया था, लास्ट टर्म मतलब, और उसका यूज करके हमने n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. Okay, so if this is done, next question note down कर लेना मेरे साथ. Third question, fourth term of an AP, fourth term of an arithmetic progression is 20 and eighth term of the same AP is 80. Find out first sub question, common difference. Second question,
first term. And third question, 25th term of the same arithmetic progression. 25th term of the same arithmetic progression. Question completely note down कर लेना. ओके अब सॉल्यूशन देखते हैं. अब सिर्फ देख लो, उसको समझ लो और बाद में नोट डाउन करना. नोट डाउन करने के लिए मैं अलग से आपको टाइम दे रहा हूं. देखना क्या क्या दिया हुआ है. फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी. क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ये क्लियरली दिया हुआ है, नो कंफ्यूजन. फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20. फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते रे? फॉर्मूला कौन सा होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. 10th टर्म को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 9d. 100 टर्म को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 99d. वैसे फोर्थ टर्म मतलब क्या रहेगा? ए प्लस 3d. क्विकली नोट डाउन करना होगा आपको एग्जाम में, फटाफट सॉल्व करना है. a plus 3d which is given as 20. Let us denote it by equation number 1. Second condition, 8th term of the same AP is 80. 8th term कैसे लिखेंगे? a plus 7d लिखना है ना फटाफट, which is equal to 80. This is our second equation. Find out first question common difference. अब देख सकते हो आप, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, a plus 3d इक्वल टू 20 एंड a plus 7d इक्वल टू 80. दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. दो इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या करना होता है? एक वेरिएबल को कैंसिल करना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाता है. तो एक वेरिएबल को कैंसिल करूंगा मतलब क्या करूंगा? सबट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन from first. Subtracting second equation from first means first we have to write as it is a plus 3d equal to 20 and second a plus 7d equal to 80. If we subtract the second equation from first, this will be minus minus minus. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे. तो आप चेक कर सकते हो, ये a और ये a माइनस a हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. 3d minus 7d that gives you minus 4d and 20 minus 80 that gives you minus 60. So d is equal to minus 60 divided by minus 4. minus minus साइन चला जाएगा और 60 divided by 4 means 15. और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मिल गया. यहां तक आप नोट डाउन करके ले सकते हो. क्लियर है यहां तक? 100%. 100%. Okay, so first question is over. Next is second question. What is first term? Find out the first term. अब first term find out करना है मतलब क्या find out करना है? Value of a. a find out करना है तो सिंपल चीज है, ये जो d आ चुका है ना हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं. आप कोई भी फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा देखना. a प्लस 3d मतलब 3 इंटू 15 दैट कम्स टू 20. फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है मैंने, खाली बाकी कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है. सो दैट गिव्स यू व्हाट? a प्लस 3 into 15 45 which is 20. so a is equal to, ये 45 यहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 minus 45. so a is equal to what?
-25 is our required answer. इसको भी आप नोट डाउन करके ले सकते हो. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया. क्विकली इसको भी नोट डाउन कर लेना. डन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज ओवर. थर्ड सब क्वेश्चन चेक कर लो. फाइंड आउट 25th टर्म ऑफ द सेम एपी. थर्ड सब क्वेश्चन, फाइंड आउट 25th टर्म ऑफ द सेम एपी. 25th टर्म मतलब कौन सा फॉर्मूला, टीएन का या एसएन का? ऑफ कोर्स टीएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. टीएन मतलब T25. 25th टर्म को कैसे लिखा जाएगा? a प्लस 24d. सही है. जिसमें से a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू -25 है ना, आ गया है ना हमारा सेकंड क्वेश्चन में. तो -25 पुट किया, प्लस 24 इंटू डी. व्हाट इज डी? डी है 15, पहले क्वेश्चन में आ चुका है. तो इसको सॉल्व करेंगे पहले मैथ्स के रूल के हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन. सो 24 इंटू 15 करना. सो -25 प्लस 360 और फिर 25 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 335. और यही 25th टर्म का फाइनल आंसर है. इसको भी नोट डाउन कर लो. समझा है क्या क्या किया है? ओके, तो अगर अब एग्जाम में क्या हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे 3-3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं जनरली. तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में ये डेटा दिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, फाइंड आउट 25th टर्म. अब 25th टर्म कैलकुलेट करना है तो आपको ये चीज यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ए और डी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. और ए और डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको ये पूरे स्टेप्स करने ही होंगे. मतलब भले ही एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली पूछा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेप्स है वो पूरे सॉल्व करके आपको डी का वैल्यू, ए का वैल्यू ये पूरा कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हो. तो यहां पे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. होपफुली आपको ये सब कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लियर हो चुका है. चौथे क्वेश्चन के लिए जाते हैं. नोट डाउन करना. 3 टर्म्स k+2, 2k+10 and 4k+24 are in arithmetic progression. Find the value of k. Find the value of k. किया नोट डाउन? अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्लियरली दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब 3 टर्म्स जो दी है वो सारी टर्म्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ k है, और हमें k का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब इसको आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे. व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कंसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. बस यही कंसेप्ट यूज करना है. तो इस कंसेप्ट के हिसाब से कैन आई से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब कॉमन डिफरेंस आएगा. कैन आई से दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सही है क्या? सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब क्या है? डिफरेंस है.
थर्ड माइनस सेकंड मतलब क्या है, डिफरेंस है। और एपी में क्या होता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब क्या रहेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। सिंपल कंसेप्ट अप्लाई किया, डिफरेंस सेम होता है मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अब सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब क्या करना होगा, सेकंड टर्म क्या है 2k प्लस 10, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट डालने को भूलना नहीं है, एरर हो जाएगा नहीं तो, इक्वल टू थर्ड टर्म मींस 4k प्लस 24 minus in the bracket 2k plus 10। अब उसके हिसाब से ब्रैकेट खोलते हैं तो 2k plus 10 माइनस ये दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे, माइनस के माइनस 2, 4k plus 24 ये भी दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी, माइनस 2k माइनस 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2k माइनस k मतलब k हो जाएगा 1k दैट इज k, plus 10 minus 2 means 8. This one 4k minus 2k that gives you 2k plus 24 minus 10 which is 14. अब k की टर्म्स एक साइड में शिफ्ट करते हैं, मतलब इसको लेता हूं यहां पे और ये 14 को लेता हूं यहां पे, तो मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस 14 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2k माइनस k। तो इफेक्टिवली 2k minus k means k and 8 minus 14 is minus 6, तो k का वैल्यू आ गया minus 6 और यही हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको भी आप नोट डाउन करके ले सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। ओके तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं। ओके अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, फिफ्थ क्वेश्चन। नोटबुक में आपके नोट डाउन करना है मेरे साथ। फाइंड आउट nth term of the sequence find out nth term of the sequence टेन 7 4 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले तो चेक करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। डिफरेंस देखना है आपको, 7 माइनस 10 एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे, अब भूलना नहीं है इसको, गलती हो जाएगा नहीं तो। 7 माइनस 10 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 मतलब डिफरेंस इज सेम, तो वी कैन राइट इट एज d इज इक्वल टू माइनस 3। कॉमन डिफरेंस है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। व्हाट इज a? 10। व्हाट इज n? n तो दिया ही नहीं है। फाइंड आउट, अरे nth टर्म ही बोला है ना, तो nth टर्म बोला है मतलब n को कुछ नहीं करना, वैसे ही रखना। आपका जो आंसर रहेगा वो n के पैटर्न में ही आएगा, इतना ध्यान में रखो। आपका आंसर जो रहेगा वो n के पैटर्न में ही आएगा। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ही कैलकुलेट करना है, a मतलब 10 लिखा, प्लस n को कुछ नहीं करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3, सो n माइनस 1 इंटू माइनस 3।
तो क्या क्या हो जाएगा देखो, 10 एज इट इज, -3 इंटू n, मतलब -3n हो जाएगा, और -1 इंटू -3 दैट गिव्स यू +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इफेक्टिवली आंसर इज -3n plus 10 13, sorry, correction, 13, and this is value of nth term. That's it. इतना आसान सा सवाल है. तो ये भी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करके लेना सॉल्यूशन. इसके बाद एक उल्टा क्वेश्चन लेता हूं आप. ओके, चलो आगे चलते हैं. 6th क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो. nth term of an AP is 2n plus 7. Find out. पहला सब क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म. दूसरा सब क्वेश्चन, सेकेंड टर्म. तीसरा सब क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस. चौथा सब क्वेश्चन, 10th टर्म. पांचवा सब क्वेश्चन, फाइंड आउट द सीक्वेंस. ये पूरा क्वेश्चन है. 5 सब क्वेश्चंस पूछे उसमें मैंने. ओके, देखते हैं आप सॉल्यूशन इसका. क्वेश्चन में दिया क्या है देखो, nth टर्म ऑफ एन एपी, क्लियरली बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें nth टर्म दिया है 2n plus 7. nth टर्म इज 2n plus 7. अब ये दिया है और पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म. लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने आपको ये सीक्वेंस दिया था, उसमें ए पता था, डी पता था और टीएन फाइंड आउट किया था. अब क्वेश्चन उल्टा है. टीएन ये क्वेश्चन में दिया है और आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस वगैरह फाइंड आउट करना है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इजी, वेरी इजी. क्या करना है देखो, nth टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो उसमें सिंपल सी चीज आपको करनी है, n का वैल्यू 1 पुट करना है. इसमें n का वैल्यू 1 पुट करना है, दैट्स इट. मतलब क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट टर्म मतलब t1 बोलो या a बोलो, उसको आप जो बोलना है बोल सकते हो. 2n मतलब 2 इंटू 1 प्लस 7, दैट गिव्स यू 9. और ये पहला आंसर हो गया. इतना आसान, इतना आसान. फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म में क्या करेंगे रे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, कुछ करना ही नहीं है खास. सो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, इसमें पुट करना है 2 इंटू 2 प्लस 7, मतलब आंसर आ जाएगा 11. आंसर आ जाएगा 11. तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉमन डिफरेंस. अब देखो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्लियरली दिया हुआ है. कॉमन डिफरेंस पूछा है. कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते रहे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं क्या,
कर सकते हैं बिल्कुल. सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. मतलब क्या आ जाएगा 11 माइनस 9 दैट गिव्स यू 2 और यही हमारा आंसर है. अब एग्जाम में देखो ये सब कुछ सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आपको डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा. टीएन का वैल्यू देंगे आपको. टीएन का वैल्यू देंगे ये वाला और आपको कॉमन डिफरेंस पूछेंगे. क्या करोगे आप पहले n1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करोगे, n2 पुट करोगे, सेकंड टर्म कैलकुलेट करोगे और फिर डिफरेंस लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और आपका आंसर खत्म हो जाएगा वहां पे. तो इस तरीके से प्रोसीड करना है. तीसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है. चौथा क्वेश्चन क्या है? 10th टर्म है, वही करो. 10th टर्म में क्या करेंगे? 10th टर्म में n की जगह पे 10 पुट करो. मतलब 2 इंटू 10 प्लस 7 मतलब आ जाएगा 27 और ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर. और पांचवा क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द सीक्वेंस. अब सीक्वेंस कैसे आएगा रे? पहला टर्म क्या है? 9 है. दूसरा टर्म 11 है, ये देखो. तीसरा टर्म क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. मतलब नेक्स्ट टर्म और 2 से बढ़ेगा, है ना. 13 आएगा तो 13 माइनस 11 कॉमन डिफरेंस 2 आएगा. मतलब आपका सीक्वेंस बनेगा 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन. ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेगा. ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेगा. तो ये हो गए 5 आंसर्स. ये पूरा अब नोट डाउन करके ले सकते हो आप नोटबुक में. होपफुली यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको. ओके अब एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं. हमारा एक आज का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 ये नोट डाउन कर लेना. सम ऑफ n terms of an arithmetic progression is two n square plus 3n. Sum of n terms of an arithmetic progression is 2n square plus 3n. Find out. पहला क्वेश्चन S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. ये मीनिंग होता है उसका. S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. सेकेंड S4 that is sum of first 4 terms. Third T4 that is fourth term. Fourth question Tn that is nth term of the same AP. Fifth question common difference. यहां तक क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया है. 5 सब क्वेश्चंस है. थोड़ा सा अभी तक जो हमने पढ़े उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको.
अब देखते हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपका होना जरूरी है इस क्वेश्चन का। इसके लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको अब देखना है आपको। पहले नोट डाउन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ सिर्फ देख लो। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एस एन डिनोट करेंगे हम। सम दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n, दिस इज गिवन। फाइंड S3। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी। S3, Sn दिया हुआ है और S3 पूछा है। देखो यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में Tn दिया था और T1 पूछा था। आपने क्या किया था, n की जगह पे 1 पुट किया था। सेम पैटर्न में यहां पे करना है। अगर Sn दिया हुआ है और S3 फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में 2 इंटू 3 स्क्वायर, n की जगह पे 3 पुट करना है, S3 पूछा है इसलिए, प्लस 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। सो 2 इंटू 9 प्लस ये 3 इंटू 3 मतलब 9। सो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 9 27, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर इज डन। यहां तक आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। S3 कैलकुलेट करना है, Sn दिया है तो सिर्फ n की जगह पे 3 पुट करना है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिनिश्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है, देखो S4 पूछा है, S4 पूछा है, Sn दिया है, S4 पूछा है, तो क्या करेंगे, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, इतना आसान। तो S4 कैसे होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, 4 स्क्वायर का आ जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 4 मतलब 12। सो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 दैट गिव्स यू 44, और ये हमारा S4 का आंसर मिल गया। S4 का आंसर हमें मिल चुका है। यहां तक आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है यहां तक, ओके। तो अब देखो क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है T4, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बोलता हूं आपको, करना क्या है, एक एग्जाम्पल समझना, मतलब एक जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल बोल रहा हूं और फिर उसको मैं आपको मेन क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं। जस्ट एग्जाम्पल 1357, इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस, कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो एपी है। अब एपी में मुझे बताओ, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, पहले 3 टर्म्स का एडिशन, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 9 है। इफ आई कंसिडर ऑल 4 टर्म्स, व्हाट इज सम ऑफ 4 टर्म्स, व्हाट इज सम ऑफ 4 टर्म्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, मतलब आ जाएगा 16। तो ये देखना, ये कंसंट्रेट करो, S3 9 है और S4 16 है। कैन आई से फोर्थ टर्म मतलब 16 माइनस 9 है। ये देखो यहां पे 16 माइनस 9 करेंगे तो मतलब 4 टर्म्स का एडिशन माइनस 3 टर्म्स का एडिशन, 4 टर्म के एडिशन में से 3 टर्म्स का एडिशन हटा दिया तो बचा क्या, फोर्थ टर्म ही बचेगा ना, फोर्थ टर्म ही बचेगा। मतलब हमें अगर फोर्थ टर्म कैलकुलेट करना है, अगर हमें फोर्थ टर्म कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, S4 माइनस S3, S4 माइनस S3। ये नोट डाउन करो, ये स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन करना।
S4 माइनस S3। वैसे ही अगर मुझे जस्ट एग्जाम्पल अगर मुझे उसी तरीके से T10 कैलकुलेट करना रहता था, T10 कैलकुलेट करना रहता था, इसको ऑब्जर्व करो। T4 कैसे कैलकुलेट किया? S4 माइनस S3। T10 कैसे कैलकुलेट करूंगा? S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। सम ऑफ टोटल 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स का एडिशन हटा दिया तो बचेगा खाली 10th टर्म। समझाइए? तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट T4। तो T4 के लिए क्या करेंगे? S4 माइनस S3। अरे ये तो आ चुका है ना हमारा। S4 कितना था? S4 था 44। S3 कितना था? 27। मतलब हमें क्या करना होगा? 44 माइनस 27 करेंगे तो हमारा T4 का आंसर मिल जाएगा। तो T4 इज इक्वल टू 44 माइनस 27, मतलब आपका आंसर मिल जाएगा 17, और यही हमारा आंसर है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखना, लेकिन मेन आंसर आपका ये है। तो यहां तक नोट डाउन करके ले सकते हो। अगर आपको Sn दिया हुआ है तो आप T4 वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, S4 माइनस S3। वैसे अगर मुझे 7th टर्म कैलकुलेट करना रहता है T7, तो क्या करना पड़ेगा? S7 माइनस S6 करना होगा। समझा है? 100%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपने सब कुछ नोट डाउन किया है। अब देखना क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है Tn। अब सिमिलर पैटर्न है फोर्थ क्वेश्चन। Tn कैलकुलेट करना है। देखो अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। T4 के लिए S4 माइनस S3, Tn के लिए क्या करना पड़ेगा? Sn माइनस, ये 4 के बाद यहां पे 3 आया था, 10 के बाद 9 आया था, मतलब 1 से कम हुआ है। यहां पे n है तो क्या आ जाएगा? Sn माइनस 1। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आप देखो, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है Sn ओरिजिनली, ये वाला, और ये Sn माइनस 1 जो है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आप नाउ Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो अगर मुझे Sn दिया है और S3 पूछा तो मैंने क्या किया? n के जगह पे 3 पुट किया। S4 पूछा तो मैंने क्या किया? t की n के जगह पे 4 पुट किया। अब मुझे अगर Sn दिया है और Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे n माइनस 1 पुट करना होगा। सिंपल सी चीज है। तो देखो क्या हो जाएगा? Sn कितना है? 2n स्क्वायर प्लस 3n, ऐसा ही है ना? ये देखो 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब जहां जहां n है वहां वहां n की जगह पे n माइनस 1 पुट करना है। बी केयरफुल इन दिस। तो मतलब कैसे होगा? देखो Sn माइनस 1 मतलब 2 इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, n की जगह पे n माइनस 1, तो n की जगह पे n माइनस 1 आ गया तो n माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू n माइनस 1, प्लस 3 इंटू n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से क्या होगा? Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट, ये पहला a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू n इंटू 1, दैट इज 2n इंटू 1 मतलब 2n, प्लस बी स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस ये ब्रैकेट खोलता हूं आप, 3 इंटू एन मतलब 3n, माइनस 3 इंटू 1 मतलब माइनस 3। अब पूरा सॉल्व करता हूं, ये ब्रैकेट खोलता हूं, 2 इंटू एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2n मतलब 4n, माइनस साइन रहेगा, प्लस 2
2 इंटू 1 2 प्लस 3n-3, इसको तो एज इट इज रखा है। अब देखो क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो आप। 2n² एज इट इज रखना पड़ेगा। ये 3n-4n मतलब -n आ जाएगा, है ना, -n आ जाएगा। और ये 2 - 3 मतलब -1 आ गया, Sn-1। ये मिल गया हमें Sn-1, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइनली? Tn कैलकुलेट करना है। तो Tn के लिए Sn - Sn-1। तो अब देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करना। Tn फाइनली इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं अब। Sn है 2n² + 3n, ये एक ब्रैकेट में रखा, माइनस Sn-1 मतलब 2n² - n-1, पूरा ब्रैकेट डाल दिया है, पूरा ब्रैकेट डाल दिया। अब ब्रैकेट कर रहा हूं ओपन, 2n² + 3n, ये -2n² हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मतलब +n हो जाएगा, और माइनस माइनस मतलब +1 हो जाएगा। अब कुछ कैंसलेशन मिल रहा है क्या? देखो, 2n² - 2n² गया, 3n + n मतलब 4n + 1, और यही हमारा Tn का आंसर आ गया। और यहां पे ये बड़ा वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप पूरा नोट डाउन करके ले सकते हो, स्टार्टिंग से लेके यहां से लेके यहां तक। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, आराम से नोट डाउन कर लेना। कुछ डाउट है तो एक बार वापस गो थ्रू कर लो सब कुछ। आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप अंडरस्टैंड करते करते नोट डाउन करते जाओ। ये फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Tn = Sn - Sn-1। ओके, तो होपफुली आपका यहां तक कंप्लीट हो गया है। ये हमारा हो गया फोर्थ सब क्वेश्चन। देखो, फोर्थ सब क्वेश्चन क्या था? Tn फाइंड आउट करना था। अब लास्ट सब क्वेश्चन क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब देखना इजी है, इजी है। ये हमने यहां पे किया था क्या, ऊपर के क्वेश्चन में? कॉमन डिफरेंस ये देखो, ये यहां पे इस क्वेश्चन में किया था हमने, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अगर कॉमन डिफरेंस पूछा है और मेरे पास Tn है, तो मैं क्या करता हूं? T2 - T1 करना पड़ेगा ना, T2 - T1। अब उसी के हिसाब से अगर मेरे पास यहां पे Tn है, तो फिफ्थ सब क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा T2 - T1। और उसके लिए मैं T1 कैलकुलेट कैसे करूंगा? यहां पे 4n + 1 की जगह पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो मतलब 4 × 1 + 1, ये हो जाएगा मेरा 5। और T2 के लिए क्या करेंगे? n की जगह पे 2 पुट करूंगा मैं, तो मतलब 4 × 2 + 1, मतलब ये आ जाएगा 9। तो इफेक्टिवली कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? T2 - T1 मतलब 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। और इसको आप अब नोट डाउन कर सकते हो। यहां पे हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।
पांचों के पांचों सब क्वेश्चंस हो गए। होपफुली आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया है। ओके, अब एपी का ही एक अगला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, तो स्टार मार्क करके रखना इस कंसेप्ट को, और उस कंसेप्ट का डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हो आप। एनी टर्म, ये एक एपी का ही और एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं। एनी टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये नोट डाउन करना कंसेप्ट, इज arithmetic mean of, any term in arithmetic progression is arithmetic mean of next term and previous term, next term and previous term। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं 2 and 6 का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो आपको सिर्फ सिंपली 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करना है। 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आ जाएगा, ये होता है अरिथमेटिक मीन। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं 10 and लेट्स से 12 का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो आपको करना है 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, इट इज सिंपल एवरेज, दैट कम्स टू 11। ये हो गया अरिथमेटिक मीन का मतलब। अब देखना प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एनी टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म। अब एक काम करते हैं, एक सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेता हूं मैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ये वाला एग्जांपल, यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोल रहा है, एनी टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म। अब पहले टर्म के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये टर्म देखो 3, इज इट अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 and 5, नेक्स्ट टर्म इज 5 एंड प्रीवियस टर्म इज 1। तो 1 और 5 का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 1 + 5 डिवाइड बाय 2 दैट कम्स टू 3, मतलब 3 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 and 1। वैसे ही 5, इज इट अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 7, 5 का नेक्स्ट टर्म 7 है, प्रीवियस टर्म 3 है, तो 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 आ जाएगा। वैसे ही 7 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 and 9, मतलब क्या है, एनी टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म। क्लियर है 100%। तो अगर मैं आपको बोलता हूं, जस्ट सुन लेना क्या बोल रहा हूं, इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डाल देना, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 9, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 9, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 3 5 7। ये अरिथमेटिक मीन है इसका, ये अरिथमेटिक मीन है इसका, और ये अरिथमेटिक मीन है इसका और इसका। मतलब इंसर्ट अरिथमेटिक मींस जब आप करते हो, जब अरिथमेटिक मींस आप कोई भी दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हो, तो आपका सीक्वेंस बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हेन arithmetic means are inserted between any two numbers, then sequence becomes arithmetic progression।
सीक्वेंस बिकम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टेटमेंट आपके नोटबुक में नोट डाउन करके ले लो। फिर एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सात एग्जाम्पल्स हमने देखे, सात देखो यहां पे, सात हमने कंप्लीट किए थे। अब आठवां एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ओके, नोट डाउन करना क्वेश्चन। इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स, insert two arithmetic means between 4 and 48, 4 and 48। अब जैसे ही इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्ट अरिथमेटिक मीन 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, जो भी रहेंगे, अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। और इसके बीच में आपको इंसर्ट करने हैं, मतलब 4 इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, चलो मान के चलते x है, थर्ड नंबर इज y और फोर्थ नंबर इज 48। इन दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स डालने हैं, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन में बोलता था इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 48, तो आप क्या कंसिडर करते थे? पहला नंबर 4, फिर x y z और फिर लास्ट वाला 48, मतलब उस केस में आपके 5 नंबर बनते थे सीक्वेंस में। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, तो ये हमारे 4 नंबर्स हो गए। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो हमें अंडरस्टैंड करना है इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स के जरिए। अब ये एपी अगर है तो उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है? 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? पता नहीं है। फोर्थ टर्म कितना है? T4 48 है, ये पता है मुझे। अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट मुझे ये दो टर्म्स करनी है। इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स मतलब वो दो अरिथमेटिक मीन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ये x मतलब सेकेंड टर्म है और y मतलब थर्ड टर्म है। x मीन्स सेकेंड टर्म विच कैन बी रिटर्न एज a प्लस डी, करेक्ट है क्या? और y इज थर्ड टर्म विच कैन बी रिटर्न एज a प्लस 2d, है ना? एपी का फॉर्मूला रे nth टर्म का, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। वैसे फोर्थ टर्म को क्या लिखना पड़ेगा? फोर्थ टर्म को क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस 3d, है ना? फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? ये करना है और ये करना है, लेकिन इसमें से ये चीज हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए देखना, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d, जिसमें से फोर्थ टर्म दिया है, a दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो a, फोर्थ टर्म ये है, और d हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा? 48 इज इक्वल टू 4 प्लस 3d, तो 48 माइनस 4 इज इक्वल टू 3d। 48 माइनस 4 इज इक्वल टू 3d, तो 44 इज इक्वल टू 3d, तो d इज इक्वल टू 44/3। हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना ये हमारा टारगेट नहीं है रे। कॉमन डिफरेंस ये टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना। x क्या है? सेकेंड टर्म है, मतलब x इज इक्वल टू क्या है? a प्लस डी, ये देखो यहां पे लिखा है। तो a प्लस डी मतलब क्या? a कितना है? 4 प्लस 44/3। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 प्लस 44 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3,
तो ये आ जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 44 मतलब 56 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा पहला आंसर मिल गया, ये हमारा पहला आंसर मिल चुका है। अब y फाइंड आउट करना है। y मतलब क्या है? थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म मतलब ही क्या है? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d मतलब कितना? a कितना है? 4 प्लस 2 इंटू d कितना है? 44 डिवाइडेड बाय 3। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 प्लस 2 इंटू 44 मतलब हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 3। 88 डिवाइडेड बाय 3 है ना? ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 मतलब 12 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 3। तो 12 प्लस 88 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। और यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे दो आंसर्स है, 56 बाय 3 पहला और 100 बाय 3 दूसरा, और यही हमारे फाइनल आंसर्स है। अब इसको भी पूरा नोट डाउन करके ले सकते हो। एक काम करना, सॉल्यूशन में यहां से लेके यहां तक पहले नोट डाउन करो, आराम से नोट डाउन करना। तो इंसर्ट अरिथमेटिक मींस मतलब आपको सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अंडरस्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन करके लेना आपके नोटबुक में। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, वैसे भी चलेगा। ये साइड वाला बाद में लिखना है आपको, ये साइड वाला बाद में लिखना। ये सॉल्यूशन तक हम पहुंच गए। फिर ये यहां तक तो आपने नोट डाउन किया, फिर ये डी वाला भी नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट। पॉज करके नोट डाउन करोगे तो चलेगा। और फिर ये वाई वाला पार्ट, और फिर ये फाइनल आंसर। ओके, तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में से कौन से सॉल्व करने ये बताता हूं। आपको जाना है पेज नंबर 6.7 पे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6A दिखेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले सॉल्व करना है। ये टिक करते जाना। ये मेरे साथ स्टडी मटेरियल ओपन करो आप, और मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं वो टिक करते जाना। पेज नंबर 6.7 पे पहले एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 6.8 पेज पे 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। ये सीरीज आप थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करना। पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म जो है वो इसको 9 इंटू 3, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 9 और 2/3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 9 इंटू 3 प्लस 2। ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और ये ऊपर वाला टर्म ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो ये 27 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 29/3 आ जाएगा। पहला टर्म है 10, सॉरी यहाँ पे 10 है पहला टर्म, दूसरा टर्म 29/3। तो देखना आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप देख सकते हो कि तीसरा टर्म जो है ये 28/3 आ रहा है। पहला टर्म 10/3 है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला टर्म 10 है, सॉरी 10 है, दूसरा 29/3 आ चुका है,
तीसरा 28/3 आ चुका है. नाउ दिस 10 कैन बी रिटन एज 30/3, 29/3 तो है ही, और फिर 28/3. तो अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो 29/3 माइनस 30/3 मतलब -1/3 आ जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस -1/3 लेना है, ये अंडरस्टैंड करो. और फिर देखो उसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज ये दिया हुआ है विल अमाउंट टू 155. विल अमाउंट टू मतलब क्या है, वो सम दिया हुआ है. अब सम के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जिसमें से एन एस एन का वैल्यू दिया है 155. सही है ना, 155 दिया है, करेक्ट है. ये देखो 155 इक्वल टू एन बाई टू, एन कैलकुलेट करना है इंटू 2a, ए का वैल्यू 10 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -1/3. अब आपको n कैलकुलेट करना है. इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, n की जगह पे ये सारे ऑप्शंस पुट करके देखना. पहले n की जगह पे 30 डाल के देखो, ये राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करना 30 पुट करने के बाद, और फिर उसका आंसर अगर 155 आता है तो ऑप्शन ए को टिक करो, नहीं आता है तो ऑप्शन बी, n की जगह पे 31 डाल के देखना है. तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के जरिए प्रोसीड करना है. ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करोगे, मतलब प्रीवियस पेज पे आप क्वेश्चन नंबर 1, फिर इस पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 देखो सम पूछा है तो एस एन कैलकुलेट करेंगे. फिर करना है 15, 17, 20 तो कुछ नहीं है, 33 प्लस 77 डिवाइड बाय 2 करना है. अरिथमेटिक मीन पूछा है खाली, कुछ खास है ही नहीं उसमें. तो इतने क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में से 6A में से इतने सारे क्वेश्चंस टिक मार्क करके रखना. हाँ, उसके बाद आगे वाले पेज पे 6.9 पेज पे क्वेश्चन नंबर 21 भी कर सकते हो. फिर क्वेश्चन नंबर 23, सम दिया हुआ है 52, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला और एन फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शंस पुट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24, अब वो 24 देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्वेश्चन में दिया है, तो हम एंड सम एस एन का फॉर्मूला यूज करो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये जो फॉर्मूला था ना, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और एस एन भी दिया है, खाली आपको n फाइंड आउट करना है. तो इस फॉर्मूला के जरिए आप कर सकते हो. फिर 25 भी करना, ये 3.5 मतलब 3.5 है, फिर 7, फिर 10.5, 14. आप डिफरेंस चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपको 3.5 का मिल जाएगा, मतलब एपी है. इसको भी सॉल्व कर देना. ये सारे क्वेश्चन टिक मार्क करके रखो. फिर आगे चलना, हाँ, पेज नंबर 6.18, एक्सरसाइज 6C, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 6C, पेज नंबर 6.18. बस इतने क्वेश्चंस आपको आज का होमवर्क बोल के सॉल्व करने हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट आ जाएगा इस सॉल्व करने में, तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फोन भी कर सकते हो मुझे. ये मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मेरा नंबर है 9423337356. This is my personal WhatsApp number. You can message me on this number if you have any doubt related to this. अगर आपको ये वीडियो वगैरह लाइक
करना है तो आप लाइक भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है तो, और उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो। आपको आगे के लेक्चर्स भी मिलते ही जाएंगे। तो आज के लिए हम यहां पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कंसेप्ट को ही और आगे बढ़ाएंगे और भी काफी क्वेश्चंस करेंगे, और हम ऐसे ही इस टॉपिक को लगभग 8 से 9 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए यहां पे रुकते हैं।